Certainly, there are people like me who are sports lovers who get emotional when India wins a hockey match. Hockey ka ye jadoo hai. And one of the jadoogars of new age Indian hockey who has made us very, very proud. 2 Olympic bronze medals, both in Tokyo and last year in Paris. Please welcome the vice captain of the Indian hockey team, Hardik Singh. Thank you, sir. Thank you for having me. हार्दिक पहले बताइए ये आई वॉन्ट यू टू शो योर टैटू दिखाइए यार विराट कोहली इज नॉट द ओनली वन विद टैटूज डू यू नो व्हाट दिस टैटू इज हार्दिक ये टैटू बताइए कहानी बताइए इस टैटू की ये सर हमारे हॉकी में होता है कि जब कोई भी ओलंपिक जाता है दे यूज टू मेक अ टैटू कि वो ओलंपिक्स गए हैं राइट एंड मेरे माइंड में ऐसा नहीं था बिल्कुल भी मुझे था कि पहले इंडिया के लिए गोल्ड आए एंड देन आई शुड मेक बट गोल्ड नहीं आया and then I thought okay it's a big achievement it's a stepping stone for us and then ये वाली ओलंपिक के बाद I thought कि I want to make a tattoo and then उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी लाइन है कि यहाँ पर है नहीं थोड़ा सा ऊपर है इसके ओलंपिक्स के राइट 2024 yeah the 5 rings of the Olympics yeah so जो ऊपर वाली रिंग है वहां पे थोड़ा सा गैप है सो आफ्टर 28 ओलंपिक्स आफ्टर 28 ओलंपिक्स के बाद आई कैन राइट गोल्ड देयर अरे वाह there is absolutely no reason why India cannot win the gold in 2028 you know I was watching a hockey match the other day when you all were playing in the Asia Cup and you scored this incredible goal against South Korea it's being described as one of the wonder goals that we've seen I wish we had that goal on the screen for you but it is the most magical goal that you can ever see ye tell me what it takes to be a hockey player in cricket dominated India aaj Punjab mein bhi dekhta hu all the young boys want to play cricket the 2 Punjab ke putar Abhishek Sharma and Shubman Gill are doing so well in cricket but hockey to Punjab ke dil mein hai unke khet mein hai I think sir as a hockey player we are very underrated because if you want to play a hockey then you have to leave your home at the age of 11 you have to leave your home you have to leave your home you have to go to the hockey hostel and then you have to play there for like 8 to 9 years और junior nationals होती है हमारी junior national में अच्छा खेलते हैं and then you go to the junior team and then junior team में competition होता है then 2 साल के बाद हमारा junior का world cup होता है then you have to play good there अगर आप वहाँ पे अच्छा खेलोगे देन आपको जो नेशनल मेन स्क्वाड है वहाँ से कॉल आती है एंड देन वहाँ से असली हमारा स्टार्ट होता है कि देन यू हैव टू बी देयर गिव यू 100% एंड इसमें ये होता है कि इट्स नॉट गारंटीड कि आफ्टर 9 years स्पेंडिंग इन 9 years दैट यू विल गो टू द ओलंपिक्स और यू विन अ मेडल और यू विल मेक इट टू द टीम so it's like that ki there's such a high stake there and then you have to give it your all it's like कि आप 11 साल की उम्र से एक स्किल के ऊपर काम कर रहे हो right by the age of 30 you need another skill कि जहाँ से आपको मतलब हॉकी छोड़ने के बाद That's true. It isn't easy being a hockey player and I'll come back to that in a moment but hockey आपके खून में है Your father played a bit of hockey, your grandfather played very good hockey, and your uncle was a gold medalist in the 1980 Hockey Olympics at Moscow. The last time India won hockey. So hockey आपके खून में है, and Punjab के खून में है. So was the inspiration the fact that you came from this hockey family from just outside Jalandhar, which again has thrown up so many great hockey players? I think for sure when you start कि जब मैंने हॉकी स्टार्ट की थी I used to hear all the stories about Olympics, Asian Games, World Cup and it really fantasized me a lot and then हमारे गांव में we have like 4 ओलंपिक के मेडल है हमारे गांव से 4 ओलंपिक के मेडल है आपके गांव से 4 ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वाओ ओलंपिक मेडलिस्ट है देन मेरे 2 आते हैं देन इट्स लाइक कि हमारे गांव से 6 ओलंपिक के ओलंपिक के मेडल हैं राइट तो बहुत सारे इंस्पायर होते हैं हम एंड देन वहाँ पे जब कोई भी टूर्नामेंट होता था तो इंडिया टीम के जो एथलीट्स थे वो आते होते थे देन वी यूज्ड टू सी देम कि वो कैसे खेलते हैं एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंस्पायर Have the facilities improved? I know states like Odisha have done remarkably. Every district headquarters in Odisha today has AstroTurf and credit to the then Naveen Patnaik government for that.
But across India, do you get better facilities? I remember 20 years ago, hockey players would complain, हमें तो second class railway डिब्बे में भेज देते हैं. To that extent, the Modi government's Olympic Gold Quest program, Olympic Gold Quest, the Modi government, a lot of sports ministry officials have promoted hockey. Today, are you better off? Can you make a life, a career playing hockey? I think yes. If you win the medal, then yes, absolutely yes. If you win a medal, If you win the medal, how much were you all paid for winning? If I may ask, the bronze medal in hockey, कितना मिला each individual player? individual play, I'll say 2 CR. 2 CR, Yeah. not bad. And then you have a Hockey India Association, right? There, तो जब भी कोई so whenever we win a medal, whenever we win Asia Cup, right? So they तो for just appreciation, right? कि वहाँ से हमें पैसे आते हैं. Then we have a state जो कि हमें पैसे देती है. Then अभी जो recently यहाँ पे हमारा टूर्नामेंट हो रहा था जो राजगीर में, they gave us some money. तो हो जाता है अच्छा. मुझे ये बताइए कि आपका नंबर जो है वो है 8 नंबर, एंड आई थिंक दिस वाज आल्सो, ये जो हॉकी का नंबर जो आता है वो भी एक तरह से सुपरस्टिशन कुछ लोगों के का होता है, लेकिन आपके रोल मॉडल थे मुझे लगता है सरदार सिंह. यस. एंड उनका नंबर 8 हुआ करता था. यू आर अ मिडफील्डर. योर बाय द वे, फॉर दोज हु डोंट नो, India wins a lot of matches because of the way now we score from penalty corners. The person who passes the ball to the penalty shooter, Harmanpreet, is Hardik. And that is one of the great skills that you need for hockey. तो ये जो 8 नंबर की कहानी क्या है? आई थिंक सर कि 2011-10 में जब इंडिया टीम का नाम आता था तब वहाँ पे कि सरदारे भाई का नाम आता ही आता था. सो ही वॉज लाइक द वन मैन शो एट दैट टाइम, राइट? कि बहुत अच्छा खेलते थे. ही वॉज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. देन आई यूज्ड टू सी हिम कि टीवी में 2014 का वर्ल्ड कप. एंड देन मेरे माइंड में यही था कि जब मैं टीम में जाऊंगा तो पाजी के साथ मैं जरूर कि खेलूंगा, ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा. एंड देन जब मैं टीम में आया तब पाजी ने हॉकी छोड़ दी थी. एंड देन जो ये 8 जो ये थी जर्सी थी, ये ना अवेलेबल थी. एंड देन आई वाज लाइक कि चलो मैं ले लेता हूँ. एंड देन आई हेड सम स्टोरीज ऑल्सो कि इसने 8 नंबर की जो जर्सी है वो ली है, विली स्टर्टअप एंड वगैरह वगैरह. एंड देन आई रियली थॉट कि फिर मेरी पाजी के साथ बात हुई. एंड देन ही सेड कि हार्दिक, मेरे को ऐसा लगा कि अगर कोई भी मेरी इंडिया की जर्सी पहन सकता है तो तू वो है. आई थिंक इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी. ये जो टीम बनी है, 80 के बाद हम कोई मेडल नहीं जीते थे, करीब 40 साल. एक ऐसे स्पोर्ट में जहां हमारे पास 8 गोल्ड मेडल है. अभी भी किसी को पूछो तो ध्यानचंद की याद आती है अमंग द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्संस. क्या बदलाव आया है कि हम 2 लगातार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? क्या टीम में क्या फर्क आया है आज की टीम में और जो 40 साल जब हमें मेडल नहीं मिला है? कहां से इतनी ये ताकत, ये हौसला कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, नेदरलैंड्स को हरा सकते हैं, जर्मनी को हरा सकते हैं? कहां से आया है? आई थिंक सर इट्स ऑल स्टार्टेड इन 2016 व्हेन वी वॉन द जूनियर वर्ल्ड कप. तो जो जूनियर वर्ल्ड कप का बैच था वही सीनियर में आ गया था. एंड देन उस टाइम में हॉकी इंडिया लीग होती थी. देन इट गॉट स्टॉप, देन इट स्टार्टेड अगेन, राइट? तो हॉकी इंडिया लीग का हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ. वी सॉ कि जो इंटरनेशनल एथलीट्स है वो भी हमारे जैसे है. वी यूज्ड टू शेयर ड्रेसिंग रूम विद देम. एंड देन उनके अगर कोई भी हमें बात होती थी, कॉम्प्लिकेशन होती थी, वी यूज टू आस्क देम कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए. एंड देन वी फील लाइक यार वो भी कोई बाहर से नहीं आए हैं. दे ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. तो उनसे भी मैचेस में कई बार आप बोलो कि टर्नओवर हो जाता है, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट द ट्रांजिशन. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितनी जल्दी वो चीज को भूल के फिर से आप अपनी नॉर्मल गेम खेलते हो. तो आई थिंक वो हमने वहां से सीखा. एंड देन इन 2021 ओलंपिक्स जब सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, वी वर ट्रेनिंग इन बेंगलोर साई. मेरे को लगता है कि हम 1 साल में वी वेंट होम फॉर लाइक 30 days ओनली. वी वर ओनली ट्रेनिंग इन बेंगलोर साई. एंड देन उसी का जो नतीजा था वो ये था कि 2021 में हमारा वी केम 3rd, वी बीट की जर्मनी. एंड देन हाउ इट गोज. क्योंकि कई लोगों को लगा कि हॉकी एक तरह से यूरोपियन स्पोर्ट बन गया था बीच में, क्योंकि जिस तरह से एस्ट्रोटर्फ आया, हॉकी बड़ी फिजिकल स्पोर्ट बन गई. हमारे पास
स्किल था लेकिन शायद वो फिजिक नहीं थी। क्या ये एक बदलाव आया है कि अब हमने तय किया है कि अगर उनका फिजिक है तो हमारा भी है? मैं आपको देखता हूं, यू लुक वेरी फिट, लेकिन अगर आप इनको फील्ड पे देखें वो बड़े से बड़े लोगों को टक्कर देते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज फिजिकल फिटनेस? क्या ये स्पोर्ट अब ज्यादा फिटनेस पर निर्भर है या अभी भी आपको स्किल चाहिए? मैं अभी भी मेरे प्रोड्यूसर को कह रहा हूं, अगर वो साउथ कोरिया का गोल्ड मिल जाए तो हम दिखाएंगे ये एशिया कप के टूर्नामेंट में हुआ था। लेकिन क्या हॉकी इज अ स्किल स्पोर्ट या ज्यादातर अब ये फिजिकल फिटनेस का स्पोर्ट बन गया है? I think sir it's a combination of both now and it's more into the physical thing because game बहुत ज़्यादा fast हो गया है। 15 minutes के 4 हाफ होते हैं and then पहले होता था कि 30 minutes के होते थे जी। तो सब्स्टिट्यूशन भी इतनी होती थी। अब क्या इसमें क्या है कि रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, गेम इतनी फास्ट हो गई है एंड देन यू नेवर नो कि अगले 10 सेकंड में भी क्या हो जाए एंड देन इट्स ऑल अबाउट कि आपकी कोच की स्ट्रेटजी क्या है। आई थिंक इट्स चेंज। 4 साल पहले ये चेंज हुआ हमारी टीम में कि स्ट्रेटजी हमारी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। द कोच केम एंड उसके जो आइडियाज थे, थॉट्स थे, वो काफ़ी अच्छे थे। तो ये क्या फॉरेन कोच आने से बहुत फर्क हो गया? आपने कोचेस जो फॉरेन कोच आए, मैं देखता हूं कि पैडी अपटन जो मेंटल इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मेंटल ट्रेनिंग करते थे वो भी अब हॉकी के साथ जुड़ गए हैं। तो क्या ये सब एक तरह से ये स्पोर्ट अब एक साइंस बन गया है कि हर चीज पर आपको फोकस करना पड़ता है, आपके मेंटल स्किल पर, आपके फिजिकल स्किल पर, और आपको बाहर से वो नॉलेज लाना पड़ता है? आई थिंक फॉर श्योर सर। आई थिंक कि हॉकी अभी ऐसा गेम हो गया है कि छोटी छोटी जो डिटेल्स है उसके ऊपर भी आपको काम करने बगैर, बट स्टिल गारंटी नहीं है कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आओगे। बट यही आई थिंक कि स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात है कि गारंटी नहीं है कुछ। यू कैन डू 99% ऑफ द थिंग गुड थिंग्स बट स्टिल यू कैन कम लास्ट ऑल्सो। बट हमारे हाथ में क्या है कि जो भी स्ट्रेटजी है, कोई हमारी जिम सेशन है, फिजिकल डिमांड है, माइंडसेट ट्रेनिंग है, कि वहाँ पे हम अपना 100% दें। तो आई थिंक कि अभी जो टीम है, ऑल द बॉयज देयर, दे नो कि हाउ सीरियस इट इज। When we won the bronze medal, पहला आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि हर व्यक्ति को गोल्ड मेडल चाहिए लेकिन ब्रॉन्ज भी मिलना कोई आसान बात नहीं है। उस टीम का पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि मुझे याद है मैंने आप सभी को एक तरह से इंटरव्यू किया था उसके बाद, और कहा गया था कि कुछ लोग गाना गा रहे थे, पूरी रात आप टोक्यो में थे। पर फर्स्ट रिएक्शन बताइए एज अ स्पोर्ट्समैन, जब आप वहां उस पोडियम पर थे, भारत का झंडा लहरा रहा है, व्हाट वाज योर फीलिंग? आई थिंक माई फीलिंग वाज कि वहां पे इंडिया का नेशनल एंथम चाहिए था। अरे वाह! आई थिंक कि वही एक चीज है जो अभी भी हम कई बार सोचते होते हैं कि यार हम सेमीफाइनल जीत सकते थे। बट आई थिंक वी आर ऑल्सो थैंकफुल अबाउट इट कि हमारे से पहले इतनी बैच आई, इतने बैच गए, उनके पास ओलंपिक का नहीं है, बट स्टिल वी वॉन द सेकंड मेडल एंड इट हैपन आफ्टर 52 ईयर्स कि वी वॉन बैक टू बैक मेडल्स। मैं एक बात कहूं, इसी शहर में मैंने एक मैच देखी थी 80 के दशक में, इंडिया पाकिस्तान, और तब पाकिस्तान की टीम बहुत ही बढ़िया थी और उन्होंने हमें कुछ 6 गोल से हराया था। आजकल अगर मैच हो तो क्या स्कोर होगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉकी में भी उतनी दूरी आ गई है जो क्रिकेट में? अगर मैच हो जाए तो 99% हम जीतेंगे, क्या ये सही है मेरा कहना? आई थिंक यस सर। आई थिंक कि अभी हॉकी अगर कोई कंपटीशन है ही नहीं है तो इसमें कोई वो ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो आजकल ये जा रहा है आई थिंक कि ये है ही नहीं, उनका यही है। अरे वाह! अरे ये नहीं, ये अगर आप ये करने वाले हैं तो अब आप नई कंट्रोवर्सी खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ऐसी चली गई है। आई थिंक सर उनकी जो फेडरेशन है, आई थिंक कि जो उनके एथलीट है काफी अच्छे हैं, बट उनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही है वैसे ही। और 2014 में वो हमारे से लास्ट मैच थे, जीते थे 2014 में। पाकिस्तान हैज नॉट वन अगेंस्ट इंडिया इन हॉकी सिंस 2014। यस सर, 14। तो आई थिंक कि पिछले व्हाट लाइक 12 इयर्स यस कि वी डिडंट लूज अ मैच। कभी जब आप ये क्रिकेटर्स देखते हो कि आईपीएल ऑक्शन में किसी को 5 करोड़ मिल गए, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है उसको 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ मिलते हैं, और आपको ओलंपिक मेडल जीतने के लिए 2 करोड़ मिलते हैं,
तो कभी सोचते हो यार ये हॉकी छोड़कर कभी क्रिकेटर बन जाता तो क्या होता? अभी तो सर बहुत लेट हो गया। हाँ, अभी अभी तो बहुत लेट हो गया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको क्लॉक रिवाइंड करे तो आप अर्शदीप सिंह होना चाहेंगे या हार्दिक सिंह होने में ही खुश है? नहीं सर, आई थिंक कि जो हॉकी ने हमें दिया है, आई थिंक कि वो कोई भी गेम नहीं दे सकती, बिकॉज जब 2021 में हमारा ओलंपिक का मेडल आया था, आई मीन सारे देश में जो एक लहर थी कि हॉकी का मेडल आया आफ्टर 40 इयर्स एंड बैक टू बैक मेडल आया, आई थिंक कि वो फीलिंग, आई थिंक कि कोई फीलिंग होती है जो पैसे से भी ज्यादा होती है, आई थिंक वो फीलिंग थी। जब आप जालंधर के रास्तों पर चलते हैं, आपका गांव जालंधर के थोड़े से दूरी पर है, तो क्या लोग आपको ऑटोग्राफ लेने आते हैं? क्या बड़ी लाइन लग जाती है या लोग कहते हैं ये वही हार्दिक है क्या? थोड़ी से लोग आ जाते हैं। आ जाते हैं। आ जाते हैं, अभी थोड़ी सी फीलिंग आने लगी है। तो एक सेलिब्रिटी स्टेटस धीरे धीरे आने लगा है हॉकी में, जो बहुत ही अच्छी बात है कि हॉकी में वो फीलिंग आए। आपने शुरुआत में कहा कि योर नेक्स्ट गोल इज 2028 में गोल्ड जीतना है। क्या आपको लगता है कि हमारी इस टीम में वो काबिलियत है कि वो कर पाए जो हम 1980 के बाद नहीं कर पाए हैं? यू थिंक दैट दिस टीम, क्योंकि श्रीजेश रिटायर हुआ है, नए हॉकी गोलकीपर आए हैं, कई नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बट आर यू कॉन्फिडेंट दैट दिस टीम ऑफ विच जस्ट वन द एशिया कप, वी जस्ट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप एज अ रिजल्ट, will it be able to win the 2020? Are we good enough to win 2028? I think 100% सर। I think कि we need to work on the small details कि जो हमारी रह गई थी last time, but still जैसे मैंने बोला कि you can do 99% of the things and still you can't win the Olympic gold, but जो हमारे हाथ में है वो ये है कि अगले साल जो हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है कि we need to win that because we didn't win the world cup from last 50 years। तो आई थिंक कि सबसे पहला हमारा गोल वो है, एंड आफ्टर 2 वीक्स वी हैव एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप के 2 हफ्ते बाद ही एशियन गेम्स हैं, एंड देन वी नीड टू विन दैट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। ये स्टिक में क्या जादू आपने रखा है? ये तो दीज आर द काइंड ऑफ गोल्स अशोक कुमार, ध्यानचंद वुड बी प्राउड टू स्कोर। सर खून में है सर हॉकी तो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, पंजाब के खून में है। क्या है सरदारों में वो ताकत है। आई थिंक सर हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम्स के लिए। आई थिंक कि जो नॉर्थ साइड की हिस्ट्री है वहाँ पे जैसे होते थे कि वॉरियर्स होते थे, आई थिंक हॉकी भी एक ऐसी गेम है कि यू नीड अ वॉरियर माइंडसेट, सो दैट्स द रीजन। वेल, यू आर अ ट्रू वॉरियर हार्दिक, and I want to tell you one thing, if I ever come to live in Jalandhar, or if my car ever stops in Jalandhar, you start a petrol pump, that's the only petrol that I will take in Jalandhar. You are truly one of the shining stars of Indian hockey. You make us emotional, and all I hope is that in 2028 you realize all our dreams and we win the hockey gold medal. Hardik Singh, Vice Captain of the Indian hockey team. Give him a big hand, ladies and gentlemen. These are the wonderful sports persons of a new India. Thank you, sir. Thank you.